Assalamu alaikum, dear students. So the last lecture was based on the Kirchhoff's first law. So today I am going to show you the very important numericals which are much important from JEE point of view, from various competitive exams. So हमने Kirchhoff's first law पे मैंने कुछ questions जो सेंगे से मैंने निकाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर के लग रहे हैं, लेकिन किरचॉफ फर्स्ट लॉ से उनको सॉल्व करना बहुत आसान हो रहा है। तो उसी में से मैंने जो आपको नोट्स भेजे हैं उस पे भी ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी रखा है। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, आई विल मेक ए डायग्राम। क्वेश्चन ऐसे, यू हैव दिस जंक्शन, this is point A, this is point E, this is B point, C point and D point. Here the resistance is 12 ohm. Okay, here the resistance is 6 ohm, here it is 4 ohm and here it is 8 ohm. Here the B is capped at a potential of 2 volt, C point is capped at a potential of 3 volt, whereas point D is capped at a potential of 4 volt. अब बेटा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, suppose I is the current going toward junction E, then it breaks, it distributes, it divides, like here it is I1, I2 and I3. Now the question is that find the current flowing from A to E. So question is as shown in the figure. Find the current flowing from A to E. तो कैसे बेटा इस करंट को हम निकालेंगे? लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एक जंक्शन, पॉइंट ई पे एक जंक्शन, तो जंक्शन के पास हम यूजुअली, मैंने बताया था, जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, इट इज एप्लीकेबल नियर द जंक्शन, it is applicable near the junction, that's why sometimes we call it as a junction rule. So let us apply junction rule near point E. At point E, तो बताओ क्या आएगा जंक्शन रूल? करंट entering, total current entering the junction is equal to the total current leaving the junction. So I is the current entering the junction is equal to, what are the various currents which leave the junction? I1 plus I1 plus I2 plus I3. Okay, so the total current entering the junction is equal to the total current leaving the junction. Now यहां बेटा करंट तो दी नहीं है, यहां पर क्या दिया है? यहां पे पोटेंशियल्स दिए हैं, दिस A is capped at a potential of 15 वोल्ट। अब मसला है कि हम करंट को, यहां तो करंट गिवन नहीं है, बल्कि क्या दिया है? यहां पे पोटेंशियल्स दिए हैं। तो क्या कोई ऐसा रूल है, क्या कोई ऐसी फॉर्मूला या ऐसा लॉ है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस से करंट निकाल सकते हैं? यस, इट इज क्वाइट सिंपल, इट इज ओम्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन फाइंड आउट द करंट इफ यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इफ यू नो द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वेरी पाथ। सो नाउ बताओ, ए से ई तक आई जो है, इट इज द करंट flowing from A to E. Now let me give you the example. Suppose यही दो पॉइंट में ले रहा हूं, this is A point, this is E point. I don't know what is the potential at E, let it is V, okay, and potential at A, it is 15 volt. What is the resistance between this path? It is 12 ohm. Now suppose I is the current, using Ohm's law, what will be the current? Yes,
व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज ओम्स लॉ? करंट किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो बताओ, अगर आपको देखना है ए से ई तक क्या करंट फ्लो हो रही है, तो आप देखोगे ना ए और ई पॉइंट्स के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है? इट इज 15 minus V. Why not V minus 15? Because current flows from high potential to low potential. तो 15 volt it is high potential, V should be low potential. इसलिए मैंने क्या लिखा? 15 minus V. डिवाइड क्या करोगे? रेजिस्टेंस, दैट इज 12 ओम। तो यहां से करंट निकलेगी ना बेटा। सो करंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, रिमेंबर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको करंट देखनी हो तो आप क्या करोगे? आप उन पॉइंट्स के बीच में देखोगे, इस ये दिस पॉइंट इज एट विच पोटेंशियल एंड दिस वन इज एट विच पोटेंशियल। उन पॉइंट्स की पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, डिवाइड करो बीच में जो रेजिस्टेंस है। सो आई विल बी रिप्लेस्ड बाय 15 यस माइनस V divided by 12 is equal to, what about I1? I1 is the current flowing from point A to point B. Using Ohm's law, what you should do? Current between E and B will be equal to potential difference between E and B. E पे मान लो पोटेंशियल है V, माइनस B पे क्या पोटेंशियल लिखेंगे? 2 वोल्ट, divided by what is the resistance of this path EB, that is 6 ohm. समझ आया मैंने क्या किया? E और B के बीच में जब करंट देखनी है तो आप देखोगे E और B में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है। E का पोटेंशियल पता नहीं है, लेट इट इज V, लेट इट इज V. सो V माइनस B का पता है ना 2, so V minus 2 by 6. But you may ask the same question, sir, why V minus 2? Why not 2 minus V? Because current की डायरेक्शन देखो, and you know current always flow from high potential to low potential. So यहाँ पर ये जो V है, it is greater than 2 volt. So potential at E is greater than potential at B. Then the current will flow from E to B. So V minus 2 by 6 plus, what about I2? Yes, I2 is the current flowing from E to C. तो क्या करोगे? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस E और C में कितनी है? V माइनस 3 यस, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 4 ओम, प्लस I3 पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस, हियर इट इज 4 डिवाइडेड बाय 8। सो बेटा कुछ नहीं करना है, आप एलसीएम निकालो। 6, 4 और 8 का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम करके यहां पर सिंप्लीफाई करके आपको जो यहां V निकलेगा, that comes out to be, because it was already solved here, that comes out to be 9 volt. It comes out to be 9 volt. So that means potential at point E is 9 volt. This is quite a simple way. जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, 6, 4 और 8 का एलसीएम लोगे, it will be like this: 6, 4, 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 3 1s are 3, 2 4 ऐसे रहेगा, 2 1 ऐसे रहेगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2. सो यहाँ एलसीएम कितना आया? 2 यस, 3s are 6, 6 2s are 12. तो यहाँ एलसीएम 12 आएगा। तो उसी 12 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो वहां पे आपका सोल्यूशन बेटा आएगा। समझ आ रहा है? इसका 12 by 6 दैट इज 2. सो सिमिलरली ये सारा कुछ आप कर सकते हो, बिकॉज इट इज द सिंपल मैथमेटिक्स, राइट फ्रॉम 8th क्लास यू हैव स्टडीड इट। एलसीएम निकाल के फिर यहाँ पे जो सोल्यूशन निकलेगा, सिंप्लीफाई करके जो V निकलेगा, दैट इज 9 वोल्ट। नोटबुक में मैंने ऑलरेडी ये सिंप्लीफाई करके दिखाया है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो वहां पे चेक कर सकता है, लेकिन पहले खुद ही करें, ठीक है। सो नाउ पोटेंशियल निकला बेटा 9 वोल्ट, बट वी आर नॉट सपोज टू डिटरमिन V। बट V क्यों निकाला? क्योंकि करंट तब निकलेगी जब V निकलेगा यहाँ। सो देयरफॉर व्हाट इज द करंट गोइंग फ्रॉम A to E इक्वल टू potential difference, that is 15 minus what is the potential at E now? It is 9 divided by what is the resistance of this path A to E? It is 12 ohm. 15 minus 9 is, yes, it is 9, it is 6 divided by 12, that is 1 by 2 ampere, that is 0.5 ampere. So बताओ बेटा कितनी करंट जा रही है from A to E? It is 0.5 ampere. Similarly, you can find out the current going through this path, going through this path. कैसे?
एक दिखाना चाहता हूं मैं। I1 बताओ कितना निकलेगा। व्हाट इज I1? पोटेंशियल एट E माइनस पोटेंशियल एट B। E का पोटेंशियल निकला 9, B का पोटेंशियल है 2, रेजिस्टेंस कितनी है इस पाथ की? 6, दैट इज 7/6 एम्पियर। तो ये सारे करंट्स आप फिर निकाल सकते हो। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So one more question I want to discuss here is, यहां पर क्वेश्चन एक है, it is like this. You have the terminals. It is 15 volt and here the resistor is 12 ohm. Then this is the next terminal. This terminal is B. This is A terminal. Here there is another resistor whose resistance is 6 ohm. Then here this terminal is also grounded. Okay, then here we have another resistor along this path. This is point C. Here we have the resistance of 2 ohm. Okay, so क्वेश्चन ऐसा है। तो अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि यहां पर क्वेश्चन इज फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्विच S व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड इन द फिगर शोन। क्वेश्चन है यहां पर बेटा ये स्विच लगा के है। क्वेश्चन है बेटा जब ये स्विच ऑन करेगी यानी कि इस सर्किट को क्लोज करेगी, व्हाट विल बी द करंट गोइंग थ्रू स्विच, यानी कि हमें यहां से देखनी है कितनी करंट जाएगी यहां से। तो क्या करोगे बेटा? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस ऑफ करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे ये जो D है, दिस पॉइंट D इज ग्राउंडेड, सो व्हाट इज इट इज पोटेंशियल? इट इज 0 volt. Is that clear? Now 15 volt comparatively it is at high potential with respect to point D. So A के साइड से करंट फ्लो होगी ऐसे। So let I is the current और I1 is the current going from A to B. ठीक है बेटा? अब क्या होगा यहां पर इस करंट की क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हमें ये देखना है बेटा ये जो C है ये किस पोटेंशियल पे है? C lies at a potential of 5 volt. ओके, समझ आ रहा है बेटा? तो C किस पोटेंशियल पे है? 5 वोल्ट पे। नाउ व्हाट डज दैट मीन? C भी जो है इट इज एट हाई पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट D. सो यू नो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। तो क्या होगा यहां से भी करंट आएगी। लेट I2 इज द करंट कमिंग फ्रॉम पॉइंट C. देन वो भी कहां से जाएगी? नीचे से जाएगी। लेट द टोटल करंट गोइंग अलोंग दिस आर्म इज I. तो बताओ ये जो I2 करंट है इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम व्हाट पॉइंट? C. क्यों? ऐसे क्यों नहीं हमने दिखाया? बिकॉज करंट ऑलवेज गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट D C is at high potential. With respect to point D, A is at high potential. तो करंट A से भी towards D जाएगी, करंट C से भी towards D जाएगी। Why? Because current always flow from high potential to low potential. Is that clear? Is that clear to you? So अब क्या करोगे बेटा? Now listen. तो यहां पर point B पे at point B I will apply KCL. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करंट गोइंग थ्रू दिस आर्म, फाइंड द करंट थ्रू दिस स्विच S. तो हमें क्या करना है? हमने क्या देखा पहले? A is at 15 volt, that means it is at high potential with respect to this D. C is at 5 volt, it is also at high potential with respect to D. तो यहां से भी करंट जाएगी towards D, यहां से भी करंट towards D जाएगी, because current flows from high potential to low potential. तो डायरेक्शंस आ गई ना करंट्स की। Now at point B apply KCL. So let us apply. What is KCL? Total current entering the junction. What are the currents entering the junction? I1 plus I2 is equal to total current leaving the junction. What is the current leaving the junction? It is I. So now अब क्या करोगे बेटा? फिर से मसला है, यहां करंट तो दी नहीं है,
I1 is the current going between points A and B. I2 is the current flowing between point B and C or C and B. तो लेकिन यहाँ I नहीं दिया है लेकिन potentials दिए हैं. So again with the help of Ohm's law you can find out. So I1 is the current between A and B. आप क्या निकालोगे? इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस. कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है? 15 माइनस B का पोटेंशियल नहीं दिया है, let it is V. So I will write here it as V divided by what is the resistance? It is 2 ohm. Okay, पता है ना, current between any two points is equal to potential difference. लेकिन किसकी potential? High potential minus low potential. You know A is at high, B is at low. With respect to B, A is at high potential. कैसे? क्योंकि current हमेशा high से low जाती है. तो 15 minus V by 2 plus what about I2? I2 is the current going from C to B. What does that mean? C is at high, B is at low. तो पहले कौन सा potential लेगी? High. It is 5. Yes. Minus what is this? It is V divided by shabash divided by 2 is equal to what is the current going between B and D? It will be equal to V minus 0 divided by 6. ठीक है बेटा, तो आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करो. सॉल्व करके क्या आएगा ये? इट विल बी 20 minus 2V divided by 2 is equal to V by 6. 60 minus 6V